রাজ্য জুড়ে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত রাজ্যের শাসক দল। নন্দীগ্রামে 1 ও 2 নম্বর ব্লকের 17টি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন বেশ কিছু সাধারণ মানুষ। শনিবার ফের রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির যোগদান মেলায় হাজার হাজার মানুষ অন্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয়, এমনটাই দাবি করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। এদিনের যোগদান মেলায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি মুকুল রায়, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়, সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি, বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত, কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী সহ একাধিক নেতৃত্ব। হাজার খানেক মানুষের যোগদানের মাধ্যমে তৃণমূলের নেতৃত্ব অধিকারী করে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি করল বলে দাবি বিজেপির। একদিকে শুভেন্দু অধিকারী দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় চাপে তৃণমূল, তার উপর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক জোর কদমে চলছে। এ বিষয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তৃণমূলের কপালে। রামনগরে এসে কৈলাস বিজয়বর্গীয় পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে চাল চোর সরকার বলে সম্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, আজকের রামনগরে বিজেপির সভায় উপস্থিত মানুষের আওয়াজ নবান্নের ইট নাড়িয়ে দেবে। রামনগরের মানুষের আওয়াজ পশ্চিমবঙ্গের চাল চোরের সরকারদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে গরিবদের চাল দিচ্ছে, ঝড় এলে নজর রাখেন। মমতা ব্যানার্জিকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টার করে ঘুরে দেখে 1000 কোটি টাকা দিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই টাকা কোথায় গেল কেউ জানে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সকলের টাকা খেয়ে নিচ্ছে বলে কটাক্ষও করেন তিনি। এমন সরকার বাংলায় থাকার প্রয়োজন নেই। যে রাজ্যে মহিলাদের সাথে ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে, তাদের সম্মান নষ্ট হয়, পশ্চিমবঙ্গে এমন সরকার রাখার প্রয়োজন নেই। যে রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থেকেও যেখানে মা বোন মেয়েদের সম্মান রক্ষা হয় না, সেখানে এমন সরকার রাখার প্রয়োজন নেই। মা মাটির নামে বাংলার অপমান করছেন মমতা সরকার। এই মাটিতে যদি বাংলাদেশের আতঙ্কবাদীরা ঢুকে থাকে, সেখানে বাংলা সুরক্ষিত কোথায়? মা মাটি সুরক্ষিত নয়। মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী বহিরাগত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহিরাগত, কিন্তু রোহিঙ্গা আতঙ্কবাদীদের আপনজন ভেবে কোলাকুলি করছে। যারা অস্ত্র পাচার করছে ওরা আপনজন। আজ টিএমসি পিকে কোম্পানির কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। টিএমসিতে মুকুল রায় নেই, টিএমসিতে শুভেন্দু অধিকারীও নেই। সেও আপনাকে টাটা করেছেন। কোনো ভালো লোক টিএমসিতে থাকতে পারে না। টিএমসির দায়িত্ব ভাইপোর কাছে চলে গিয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো মারাত্মক অভিযোগ করেন। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে প্রসূন ব্যানার্জির রিपोर्ट, स्टिंग न्यूज। मैंने कहा वहाँ कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। आप देखिए राम नाम और रामनगर का प्रभाव कि रामनगर के 20 किलोमीटर तक बारिश हो रही है, कलकत्ता से लेकर यहाँ तक, पर रामनगर में एक बूंद पानी नहीं है। ये राम नाम का प्रताप है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकेट जी ने बहुत सही कहा, जहाँ राम है वहाँ भाजपा है, वहाँ पदम फूल है। रामनगर का आज शंखनाद ममता जी के नवान की ईंट हिला देगा। रामनगर का ये शंखनाद पश्चिमी बंगाल से चावल चोरों को हटा देगा। बड़ा अच्छा नारा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाल चोर सरकार और नई दरकार। मैं बोलूंगा चाल चोर सरकार, आप कहेंगे चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आते हैं, गरीबों के लिए निशुल्क चावल देते हैं, तूफान आता है तो दौरा करते हैं, ममता जी को साथ में लेते हैं, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं। वो 1000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। ये चाल चोर सरकार तूफान का पैसा भी खा जाती है।
गरीबों का पैसा भी खा जाती है। क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। कांग्रेस की सरकार देखिए ना, कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने, आपने सीपीएम की सरकार भी देखी ना। सीपीएम की सरकार में भी हत्या होती थी, लूटमाट होने लग गई। आपने ममता जी को बिठा दिया ये सोचकर कि सोनार बंगला बनेगा। माँ, माटी और मानुष का नारा देकर उन्होंने पश्चिमी बंगाल की जनता से आशीर्वाद मांगा था। पश्चिमी बंगाल ने एक बार नहीं 2 बार ममता जी को आशीर्वाद दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर यदि सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना होती है तो क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं। जहां मां की रक्षा नहीं हो, जहां बहन की रक्षा नहीं हो, जहां बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो और उस प्रदेश की मुख्यमंत्री यदि महिला हो तो क्या ऐसी महिला को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? मां के नाम से आई, माटी के नाम से आई, माटी। अरे इस माटी को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, इस प्रदेश के नौजवानों ने भारत माता की जय बोला, तिरंगे को हाथ में लिया, वंदे मातरम बोला, तिरंगे को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे नौजवान, चाहे रास बिहारी बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सबने अंग्रेजों को भगाने के लिए फांसी के फंदे को छुमा, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला, तिरंगा हाथ में लेकर बोला। फिरंगे की गोली उनकी छाती पर आती थी, गोली लगती थी, नौजवान गिरता था, दूसरा नौजवान तिरंगा थाम लेता था और कहता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये माटी अगर है तो उन नौजवानों के खून के कारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इस माटी में बांग्लादेश के घुसपैठी आएंगे, क्या माटी सुरक्षित है बंगाल की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां सुरक्षित नहीं, माटी सुरक्षित नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए कानून बनाया। सीएए कानून बनाकर वो सब हिंदू जो पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए, जो बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए, जो अफगानिस्तान से प्रताड़ित हुए, हमारे देश के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम ये लागू करेंगे और उन सब लोगों को नागरिकता देंगे। पर ममता जी क्या कर रही है? ये बाइकों के पास चली और बाइकों क्या कर रहे हैं? हमारी अभी लॉकेट दीदी ने बताया, गाय की तस्करी का पैसा कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? बाइकों के पास, भाइयों के पास। कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है? जोर से बताओ। बांग्लादेश में तस्करी का पैसा किसके पास जाता है? भाइयों के पास। ये भाई को अब टीएमसी चला रहा है। क्या ऐसी टीएमसी की सरकार इस प्रदेश में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। टीएमसी अब ममता जी की नहीं है, टीएमसी पुराने नेताओं की किसी की नहीं है। सब टीएमसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी टाटा बाय बाय कर रही है। ममता जी और भाई को जितना 4 महीने का समय है आपका, और फावड़े से नोट खींच लो, पर उस नोट का करोगे क्या? जब सीबीआई छापा मारेगी, जब सीबीआई पकड़ेगी तो वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा। जेल में पैसे का कोई उपयोग नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग, सिंडिकेट लोग, कट मनी खाने वाले लोग, गाय की तस्करी करने वाले लोग, कोयले की तस्करी करने वाले लोग, सबकी जगह नवान नहीं है, जेल है। और आने वाले समय में ये सब सिंडिकेट राज चलाने वाले लोग कहां होना चाहिए?
बताइए जोर से, गाय की तस्करी करने वाले लोग कहाँ होना चाहिए? चावल तस्करी करने वाले लोग कहाँ होना चाहिए? उनकी जगह जेल में है, नवान में नहीं है। नवान में जगह है तो देशभक्तों की जगह है, नवान में जगह है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं की जगह है, नवान में जगह है तो सोनार बंगला बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह है। और इसलिए रामनगर के नागरिक बंधुओं, ये रामनगर का शंखनाद पूरे बंगाल के अंदर एक माइलस्टोन बनेगा, एक मील का पत्थर बनेगा। हमारे सव्यसाचीदा नाराज हो रहे थे, अधिकारियों ने जमीन नहीं दी, जगह नहीं दी सभा के लिए। अरे उनके जमीन और जगह देने से कुछ नहीं होता। पश्चिमी बंगाल की जनता में नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल में जगह है। हम दिल तक पहुंच गए हैं, दिल तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आते तो कहते ये बाहरी है। क्या देश के प्रधानमंत्री बाहरी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? वो इस देश के रक्षक है कि नहीं? वो चाइना की छठी का दूध याद करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अमित शाह जी यहां पर आते हैं, दीदी कहती कि बाहरी आदमी है। अमित शाह जी जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, इन्होंने धारा 370 हटाई, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? ममता जी कहती कि ये बाहरी व्यक्ति हैं। अरे ममता जी, रोहिंग्या मुसलमान जो आतंकवादी हैं उनको आप गले लगाती हैं, वो आपके प्यारे हैं रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहाँ तस्करी करते, फेक करेंसी चलाते हैं, हथियार लाते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं, वो आपके हैं। और अमित शाह जी बाहर के हैं, कैलाश विजयवर्गीय बाहर का है। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया। आपने पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को पीके के पास, पेक कंपनी के पास गिरवे रख दिया। आज टीएमसी ममता जी की नहीं है, आज टीएमसी मुकुलदा की नहीं है, आज टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की भी नहीं है, वो भी टाटा कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अब टीएमसी में नहीं रह सकता। अगर मदन ग्रोही की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब ममता जी को कुर्सी से उतारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे 126 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपसे पूछना चाहता हूं, मां सुरक्षित है क्या? माटी सुरक्षित है क्या? मानुष सुरक्षित है क्या? क्या ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार है? और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि इस हत्यारी सरकार को, इस चावल चोर सरकार को, इस सिंडिकेट राज चलाने वाली सरकार को, ये भुआ भतीजे की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। बोलिए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। बनाना है ना चाल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, चिट फंड सरकार अब दरकार नहीं है। अब यदि दरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, हम इस प्रदेश में माता और बहनों को सम्मान प्रदान करेंगे, हम इस प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। मैं बॉम्बे जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, एयरपोर्ट से उतरता हूँ और लोग मुझे पकड़ते हैं, कैलाश जी बंगाल में आप जल्दी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, हम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। बंगाल के नौजवान बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं,
बंगाल के नौजवान हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं, बंगाल के नौजवान बंबई में नौकरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर वहां नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ उद्योग नहीं है। ममता जी, आपने इन्वेस्टर मीट के नाम पर 4-4, 5-5 इन्वेस्टर मीट की करोड़ों रुपया खर्च किया, एक भी उद्योग नहीं लगा। ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 10,000 से ज्यादा छोटे मोटे उद्योग खत्म हो गए। आज बेरोजगार नौजवानों की संख्या बंगाल में बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम उद्योग लाएंगे, कारखाने लाएंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो सारे देश के नौजवान देख रहे हैं, बंगाल वंचित है। बंगाल में भी हम आत्मनिर्भर बंगाल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर बनाएंगे। और इसलिए नागरिक बंधुओं, आप सबसे निवेदन है, अब कमर कसना है, अब डरना नहीं है। इस प्रदेश में मां का सम्मान नहीं, इस प्रदेश की माटी खतरे में है। मानुष की बात करूं मैं।